Jai Hind, all of you. Today, our guest is Ishan Rathod. He is here to guide you regarding the NDA preparation, how to prepare yourself for the written exam. The Ishan cleared the NDA written exam in first attempt. It's a very big achievement for him and for us also. Reason behind is that because Ishan is a very close relative of our principal Rathod sir. For this program, here is our school commandant and principal sir is here, and Ishan gives you the important guidance regarding the India written exam. And after the completion of his speech and his guidance, if you have some question in your mind, then you can ask your questions to him. Now, I would like to request our commandant sir and principal sir to felicitate Ishan by offering a bouquet. Before Ishan speaks, again, just to make you aware what for we are conducting such kind of small talks. Now he is exactly 1 year senior to our 12th guys and 2 years senior to you. He also started journey. He is now family member only, principal sir's family member, our family member. So when we watch such success and journey, again it gets substantiated that nothing is impossible if you are determined. So Ishan's journey is also symbolizing that yes, if you are determined, if you are persistent, and if you are ready to do extra hard work, I am adding a word extra. That extra will make difference, and you will be tomorrow sitting here. These honors, privileges will come after you put in your hard works. So today, Ishant is here. He has cleared his return. He is going for SSB after 2 days to Allahabad SSB. And I'm sure he is prepared for that. We were discussing about SSB interview. He is prepared. And he will, in all probability, will qualify for next stage. But then, here he will be guiding you about the written part, and you must be free to ask where are your problem areas, because he has traveled on that path. He is fresh from those hardships. What problems you are facing now, maybe 2 years back he was facing same. Whether it is about confidence in mathematics and GAT and the sub-subjects in the GAT, maybe in chapters, methodology of writing these exams. So you must listen carefully and ask doubts so that you are much prepared, much more prepared. Like he has created his way, you have got a benefit. You can listen to such success stories and you can be at a better pedestal to start. You are just starting, 11th guys. You are just starting. So you are at better position, better pedestal to start. So I'll request Ishan, you just narrate your journey, whatever do's and don'ts you learnt, what mistakes you made, and you know student psych, you are also part of that only, where students go wrong, especially in maths and in GAT, whatever you have tips to share, and then 10 minutes they will ask questions. And I expect today better questions, better doubt clarification, because this is how you will also move ahead and you will sit one day as a guest. Okay, it's an honorable position when you go and guide others. Okay, I will hand over to Ishant now.
First of all, good afternoon, everyone. There's no Josh in you. How should be your Josh? How's the Josh? How's the Josh? Like this. So now, good afternoon, everyone. That's better. First of all, I will thank Sanjay sir and Nikhil sir for inviting me as a guest here. And starting with my preparation, first of all, I will tell that I got to know about NDA in childhood only, and I was passionate to join army. So I told my family members that I want to join army and as a officer. So first of all, my family mindset was that there was no one in the defense background in my family. So my family thought that I should not join army or defense forces. My family opposed me to do NDA. They admitted me in a JEE class. I spent there 6 to 7 months, and after that, I realized that I have nothing to do with JEE or NEET or CET. I have to clear NDA, and I want to do NDA only. So I requested and persuaded my father many times. Then after that, he admitted me in the written class of the NDA. After that, I would say that just I discussed with you, Pankaj sir, and he told me that students are fearing about और they have fear about maths and English. दो ही सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डरना नहीं है, कुछ खा जाने वाले नहीं है. सिंपल सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा. कंसेप्ट्स जो भी सिखा रहे हैं, जितने भी डाउट्स है, जब डाउट आया तब क्लियर करना चाहिए. जैसा डाउट आया, सिली डाउट भी हुआ, शर्माना नहीं है. सभी अपने लोग हैं, ऐसा समझना और पूछना. पहली बात, मैथ्स का प्रिपरेशन. अभी समझो आज सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, कंप्लीट हुआ. आफ्टर 10 to 15 days सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर इज ओवर. तो आप क्या करोगे कि पहले तो नोट्स पढ़ोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. और हाँ, फिलहाल कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फिलहाल का ट्रेंड जो चालू है फ्रॉम लास्ट 5 to 4 years, it's the questions they are asking is on concepts or application, not calculation. So focus on your concept building and not only on solving. Solving is required, but before that you must concrete your concepts, and you will do that how? By reading the notes, by solving questions on that particular concept. You will get that from MFN, you know, Mathematics for India of Aryan publication, Pathfinder. Then there are state board books, NCERT books, ID Sharma, various books are there. But if you solve Mathematics for India and Pathfinder, these two books are, I would say, enough. And prepare a formula book of the chapters. Means how many chapters you guys completed right now in the syllabus? In English syllabus, we And- completed 2 chapters. Which? Set, function, and relation. Set, function and relation. Okay. Make a formula book keep a formula book, make a 100 or 200 pages register or a notebook, and write down the chapters. First of all, in the index, write down all the chapters. And then the first chapter, set relation function, formula of it. And fill that book as you cover your syllabus. Getting my point? And just, you have to do nothing. Just after waking up and before going to the bed, you just have to read that formulas. Do that. Maintain your formula book. And one mistake I did is that I was just focusing on the maths. सिर्फ मैथ्स करना नहीं है, मैथ्स के ऊपर टिकना नहीं है, गैट भी करना है. जितना मैथ्स इंपॉर्टेंट है उतना ही गैट इंपॉर्टेंट है. मैथ्स सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर ले, लेकिन आपका स्कोरिंग जो पॉइंट रहेगा वो गैट में ही रहेगा. मैथ्स में स्कोर करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है. मैथ्स का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गैट का हमारे हाथ में देखते से ही पता चल जाता है कि आता है कि नहीं, अटेम्प्ट करने है कि नहीं. लेकिन मैथ्स का वैसा रहता है क्या? नहीं. मैथ्स में देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, क्वेश्चन आ सकता है या कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है. मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है. कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो और उसको रिवाइज करते रहो, हो जाएगा. मैंने यही किया था, कुछ अलग नहीं किया था. यही करना है, सबको यही करना है. जितना अच्छा रिवीजन रखोगे
उतने आपके कंसेप्ट स्ट्रांग रहेंगे, उतना अच्छा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी रहेगा, उतना अच्छा आपका पेपर है। और डरना नहीं है। मैथ्स मतलब कौन कौन है यहाँ जिसको मैथ्स हार्ड लगता है एकदम? एज सर सेड एवरीवन, सो आई विल कंसिडर एवरीवन। डरना है नहीं, मैथ्स सिंपल चीज़ है, ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। एक बार अगर आपने इमेजिन कर लिया या फिर आपको समझ गया, आपके दिमाग के बेस में अगर वो एक बार बैठ गया कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे है, तो अप्रोच कैसे रखना है, तो हो जाएगा। बस कंसेप्ट और एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व नहीं करना है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। और हो सके तो ग्रुप स्टडी करो। किसके लिए? गैट। गैट जो है, गैट के लिए ग्रुप स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। एज यू डिस्कस, as you more discuss more the concepts and the facts, it will be fit in your mind. आप जितना डिस्कस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैंने भी वही किया था। मैं जहाँ पे क्लासेस पे था, एनडीए के क्लासेस, डिफेंस सिंप्लीफाइड, यू नो कुणाल चाटे सर, आई एम ए स्टूडेंट। वहाँ पे उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया था कि हमारा ग्रुप स्टडी होता था। ग्रुप स्टडी के अंदर हमारा डिस्कशन होता था, फिर वो फॉर्मूलेज ही क्यों ना डिस्कस करे या फिर एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर क्यों ना करे, हमारा हो जाता था। मैंने गैट का वैसे प्रिपेयर किया। और मैथ्स का मैं यही बोलूँगा कि जितना आपका सिलेबस हुआ है उस पर फोकस करो, और उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से, वीक पॉइंट्स कौन से, मीडियम पॉइंट्स कौन से, वो एनालाइज करके, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनके टच में तो रहना ही है, लेकिन जो मीडियम पॉइंट्स है या फिर मीडियम चैप्टर्स, जिसे जो मीडियम चैप्टर्स रहेंगे उनके ऊपर काम करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग, अभी समझो मैं टोटल 32 33 चैप्टर्स है, मेरे 15 चैप्टर्स है, 20 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है एकदम पक्के, लेकिन 5 वीक है और 5 मीडियम है। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि 5 जो मीडियम है उन पे ही काम करूँगा, जो स्ट्रॉन्ग वाले उनको छोड़ूंगा। वैसा करना नहीं है, उनके भी टच में रहना है और इनके ऊपर भी काम करना है, साइमल्टेनियसली काम करना है। एक खुद का टाइम टेबल बनाओ, एक खुद का शेड्यूल बनाओ। rather than the lectures, you should study minimum 8 hours rather than lectures. Getting my point? जितना आप पढ़ोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और गैट के लिए मनोहर पांडे बुक पता है आपको? मनोहर पांडे जीके 2024, 2025, 2023, ये बुक करनी है, वो पढ़नी है। पाथफाइंडर होगी, पाथफाइंडर भी पढ़नी है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल। बस एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी भी चलेगी, लेकिन मनोहर पांडे रही और पाथफाइंडर रही, उनको पढ़ना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी फिजिक्स का कौन सा चैप्टर हो गया? मोशन हो गया। मनोहर पांडे में से पढ़ना है, पाथफाइंडर में से पढ़ना है, उसी दिन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सेम चीज आपको बस रिपीट करनी। और जैसे आपका समझो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अप्रैल मई तक, जून तक, जुलाई तक पकड़ लो, उसके बाद जो पीरियड आएगा उसके अंदर सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने, उनको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट, अभी मैथ्स का मॉक टेस्ट रहेगा, समझो 2.5 hours 120 क्वेश्चंस निकालने। एसआरएफ में से ऐसी लिस्ट बनानी है, 33 चैप्टर्स के नाम लिखने। अटेम्प्टेड टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके करेक्ट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं और अनअटेम्प्टेड कितने, ऐसे 5-6 कॉलम्स बनाने के, एनालाइज करना है। वो अगर किया, और जो फिर देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमें नहीं आ रहा है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट हमें हार्ड जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट में टाइम लगा, वो कॉन्सेप्ट पे काम करना है, यही करना है। और गैट का बस यही पढ़ूंगा, जितना पढ़ोगे उतना बेहतर, जितना पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना कॉन्स्टेंटली उसके टच में रहोगे, जितना रिवाइज करोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड सच्ची बोल रहा हूँ, एक बार अगर एनडीए रिटर्न क्लियर हो गया ना, तो घर वालों का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ। और एनडीए रिटर्न क्लियर करने के बाद जो एसएसबी का रहता है, एसएसबी का जो टेंशन रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंग्जाइटी, जैसे सर ने मुझे बोला था, अभी हम डिस्कस कर रहे थे तब, तो वो रहती है और रहना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। और एसएसबी का अगर आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा ना,
तो एक पर्टिकुलर एकदम अच्छा टाइम टेबल बनाइए खुद का एंड स्टिक टू इट डेली, डोंट ब्रेक इट, मेंटेन इट। और एक चीज़ बोलूँगा मैं, एक पॉकेट डायरी आती है, पॉकेट डायरी होनी चाहिए सबके पास, और उसमें क्या करना है, मैथ्स फिर 1 डालना है, एटलीस्ट 30, 40, 50 एज पर योर कैलिबर you should write the questions, means at least 50 questions to solve at least 50 questions। फिर 2 डालना है, मतलब आपके हिसाब से आप टास्क देने खुद को, फिर रिवाइज फॉर्मूलाज, ऐसे टास्क असाइन करने, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फॉर एवरीथिंग maintain a pocket diary just on a page, on a single page, write maths, means I'll give you an example. Today is 9 date, for 10 July, what I will do, before going to the bed, I will make a task for tomorrow. I will give or allot myself a task for tomorrow, and as I complete my task, I will cut the task by a red pen, black pen, blue pen, whichever pen you have. The satisfaction you get by cutting that task, it's next level. Assign yourself 7 to 8 tasks minimum. It will be difficult for you to complete it from the first day, but don't get demotivated. Just stick to it and just complete it. यही दिमाग में रखना है, ये किए सिवाय मैं सोऊंगा नहीं, खाना खाऊंगी नहीं, वगैरह वगैरह। अगर नहीं हुआ तो खुद को एक छोटी सी पनिशमेंट देनी है, अगर हुआ तो एक छोटा सा रिवॉर्ड देना है। गेटिंग माई पॉइंट? बस। और गैट का मनोहर पांडे पढ़ो, पाथफाइंडर पढ़ो, एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, और क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल आई वुड से। थैंक यू। Any questions? यस, एनी क्वेश्चंस? Basic question. बेसिक कोई भी क्वेश्चन है, पूछ लो। कोई भी डाउट, कोई भी, शेड्यूल या फिर कैसे मतलब डाउनफॉल आया या फिर डिमोटिवेट हुए तो क्या कुछ। There, maybe I will ask question. यस सर। When you were preparing for MDA, what was your strong area and what was your weak area in MDA's syllabus? Maths, GAT. What was your strong वीक, and what was your weak area? वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, daily schedule, right now I am preparing for SSB, so my daily schedule is waking up early, 5 or 5:30, going for a run, coming back, getting prepared for the class, solving WATs, SITs or SSB work, reading newspaper, reading books, and getting back home, sleep. Just this. During written preparation, I gave means sir's question and your question I will answer simultaneously only. सर ने जो क्वेश्चन पूछा, जो मेरा वीक एरिया था सिलेबस के हिसाब से, तो मैं बोलूँगा मैं स्टेट बोर्ड से था, 10th तक मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा। मेरा जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, पूरे के पूरे वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं था। मैथ्स मुझे आता नहीं था, इंग्लिश पढ़ना लिखना आता था, बोलते आता नहीं था, थोड़ा बहुत वोकेबलरी था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं था। उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी कुछ ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, मीडियम था। तो वीक, एज सर आस्क्ड, वीक एरियाज, एवरीथिंग वाज माय वीक एरिया, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट मैथ्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैथ्स फॉर इंडिया, आई मेड इट माई फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे मेरा मैथ्स फेवरेट क्यों था? क्योंकि वो मुझे आता नहीं था। दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई टैकल्ड इट। और वही जो वीक सब्जेक्ट्स थे उनको टाइम टेबल के हिसाब से मैंने फॉलो किया, तब पर्टिकुलर टास्क असाइन करने के बाद जब वो सॉल्व करते हैं तब होगा। अगर वेग, मतलब ऐसा वेग टास्क दोगे बहुत बड़ा, जैसे कि अब मैं जो बोला एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, वो कब? सिलेबस पूरा होने के बाद। अभी आपके लिए मैं आइडिया दे दूंगा। एक SRF हो गया, फिजिक्स का मोशन हो गया, और कुछ हुआ है
और कोई ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का स्पेस चार्ट, ओके। अभी क्या करना है, आज रात को सोने से पहले जाना है और टास्क डालें मैथ्स, कल के लिए मैथ्स कंप्लीटिंग पाथ फाइंडर ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन सॉल्व करनी है पूरी। बाद में ज्योग्राफी का स्पेस हुआ, पाथ फाइंडर में से वो सॉल्व करना है। मनोहर पांडे रीड करनी है, पाथ फाइंडर में से सॉल्व करना है वो। बाद में फिजिक्स का भी सेम। ऐसा मैंने आपको आइडिया दे दिया, वैसे आप मॉडिफाई करते रहना। और वीक एरियाज पे मैथ्स मेरा वीक था, तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो जस्ट मैंने ऐसे ही ट्रायल बोल के दिया था, नॉट एज अ सीरियस अटेम्प्ट, आई जस्ट गिव इट एज अ ट्रायल। एंड वो वक्त मैं सिर्फ मैथ्स करता था, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करता था। मतलब समझो मैं तब नियर अबाउट 10 to 12 आवर्स पढ़ता था, और 10 से 12 घंटे में सिर्फ मैथ्स पढ़ता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो मैंने काउंटर किया, फिर मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दिया और गैट को धीरे धीरे बढ़ाया। फिर बाद में जब सेकंड अटेम्प्ट था, जो विच वाज माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, तो उसमें मैंने मैथ्स को 8 आवर्स देता था, गैट को 4 आवर्स, मतलब वेरी करता था, 6 आवर्स लाइक दैट। मैथ्स जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो उतना करना है, धीरे धीरे लिमिट बढ़ानी है। एकदम से पहले दिन से 12 घंटे पढ़ लेंगे, नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाना है। और उसके बाद चिल रहना है, रिलैक्स, माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और तुम्हारा क्वेश्चन जो था मैथ्स का, कितने वक्त देते थे? मैथ्स करने के लिए मूड लगता है, मेरा जब मूड होता था तब मैं मैथ्स करता था। फिर मेरा 24 घंटे मैथ्स करने का मूड रहता था, तो मैं 24 घंटे मैथ्स करता, 12 घंटे, 10 घंटे, 8, 2 घंटे तो 2 घंटे। कुछ दिन ऐसे थे मैंने मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया था, सिर्फ गैट किया था। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैथ्स करने के लिए मूड लगता है, लेकिन वो मूड बनाना आना चाहिए। मैथ्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एंड यू शुड नो हाउ टू डू इट. Your teachers will teach you, they will also guide you how to do it, you have to follow it. Any more questions? Yes. How should we prepare for GAT, especially for current affairs? Current affairs. Yes. Read newspapers and follow the Desire to Learn channel, Cities Journey channel. Just read that. You will get for current affairs. And forget, I will just say, read the Manohar Pandey NCERT Pathfinder and solve the questions as much as possible. Try variations in the questions, solve it. Another set of questions, solve it. If you have phone with you, do you have phone with you? That's a lot. That's the best thing you have. That's really good for you that you are not having your phone. Phone was one of the major distraction which I had. And as soon as I got to know that I am getting away from my track, I just switched off the phone, gave it to my mother, and told her not to give me. Even if I quarrel with her, don't give me. You have to do that. If you are not having phone, that's the best thing. It's a very much distraction. Those who are having Instagram, Snapchat, Facebook, Telegram, delete it. Don't use it even in the vacations also. Even if you go at home in the vacation or whenever your parents visit you, they gave you phone for surfing. Don't use it. Tell them don't use it. I don't want it. I will take whenever I want. Understood? Okay. For current affairs, read newspapers. Follow. You are not having phone, so I will just say that read the newspaper. And current affairs, there are only 10 questions from 150 questions of the CAT. Near about 10 questions come from the current affairs. Even if you made your English and science and SST your strong points, there is no need of doing current affairs, but it is important for SSB. So don't worry about that. For written, even if you don't do about the current affairs, it will be okay, but you have to get a strong hold on physics, chemistry, other subjects. And सर ने बोला कि इंग्लिश, मतलब पंकज सर ने बोला था कि बच्चों के मन में इंग्लिश और मैथ्स का बहुत डरना है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मैथ्स को जितना आप करोगे उतना आपको मजा आएगा। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर, बुक्स, और जितना हो सके उतना एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात करो। टूटी फूटी क्यों ना हो, इंग्लिश में बात करना है। ऐसा रोज करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं। सिंपल।
Any more questions? Thank you. आई थिंक इससे और स्ट्रेट लैंग्वेज में बात नहीं हो सकती, काफ़ी स्ट्रेट प्लेन एंड ग्राउंडेड बातें हुई। 2 साल पहले वो शायद आप जैसा ही था, सभी सब्जेक्ट्स में वीक फील कर रहा था, लेकिन करने से होता है। तो कपल ऑफ टेक अवेज फ्रॉम हिज दिस शॉर्ट टॉक। फर्स्ट, जिस चीज़ का डर है उसी को पहले अपनाओ। मैथ्स का डर है तो मैथ्स को फेवरेट बना लो, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने लोग एग्जाम देते हैं, पास तो थोड़े ही होंगे ना। वो थोड़े कौन होते हैं? जिनका अप्रोच पॉजिटिव होता है, दोज हु थिंक लिटिल डिफरेंटली। रोएंगे तो सब, लेकिन रोते रोते भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ टास्क को पूरा करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो इन अ वेरी सटल लैंग्वेज ही सेड, मेरे सारे वीक सब्जेक्ट थे, मैथ्स का इंपॉर्टेंस पता चला तो आई मेड मैथ्स एज माई फेवरेट। क्योंकि सपना कौन सा पूरा करना है? एनडीए का। एनडीए को जरूरत मैथ्स की क्वालिफाइंग करनी है, तो उतना तो करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट ही सेड, मोबाइल है तो ठीक है, नहीं है तो ज़्यादा ठीक है। दिस इज ट्रू। हमने जब प्रिपेयर किया तो मोबाइल ही नहीं था, तो हम लोगों को तो शायद हम भाग्यशाली थे। लेकिन आप लोग ओवर इन्फॉर्मेशन से भी फेल होते हैं लोग, क्योंकि गूगल पे ढूंढते रहो, 4 घंटे निकल जाएंगे, स्टडी क्या किया कंफ्यूजन रहता है, क्या स्टडी किया आज। अलग अलग साइट्स है, चैनल्स है, वॉट एवर इट इज। एंड मोर देन दैट, मेंटल हेल्थ वीक होती है, क्योंकि आईज पे स्ट्रेन हो रहा है, यू आर मेंटली गेटिंग टायर्ड एंड यू आर कंफ्यूज्ड ऑल्सो। तो आप लोग, मोबाइल नहीं है तो कुछ लोगों के मन में होगा क्या हमारे पास डिसएडवांटेज है? बिल्कुल नहीं। कुछ चैनल्स हम यहाँ प्ले करेंगे स्क्रीन पे, यूट्यूब के चैनल्स हो या और भी कुछ वीडियोस है, ताकि आपका जीके और जो भी एरिया है जो हमें ऑनलाइन करना है वो करेंगे यहाँ, डोंट वरी। तो दैट इज सेकंड पॉइंट व्हाट ही मेंशन। थर्ड पॉइंट विच आई फील, एवरी पर्सन विल हैव हिज और हर ओन स्टाइल। कल हमने आदित्य को सुना था, आज हमने ईशांत को सुना। सी, कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है सक्सेस का, अपना एक तरीका ढूंढना होता है, हमें क्या सूट होता है, तो आपको भी वो चुनना है। और आप में भी अगर इमेजिन करेंगे कि ओके हमारे 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट पास हो गए, उन 10 स्टूडेंट का सेम फॉर्मूला तो होगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि मुझे क्या सूट करता है, मुझे कौन सा शेड्यूल सूट करता है, मुझे कैसे करना चाहिए। वो आपको करके देखना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन करते रहना है। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी जो बोलते हैं, ये है आपको डिसीजन लेने, और वो भी लिटिल फास्ट, क्योंकि समय जा रहा है। शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे करते करते दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, फिर महीना निकल जाता है, और आपको फिर डर, अगर आपने सिस्टमेटिक नहीं किया तो डर बढ़ेगा, और फिर ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर देता है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो पीछे से पूछा था, शेड्यूल वगैरह, जो मुझे लगता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस काफ़ी लोगों के मन में है कि हमारे पास टाइम कहाँ है। लोग बोलते हैं 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। जिंदगी का असली चैलेंज टाइम मैनेजमेंट है। टाइम कभी मिलेगा नहीं, टाइम निकालना ही होता है। वेदर यू आर स्टूडेंट टुडे और टुमारोज इंडियन आर्मी जनरल, यू हैव टू मैनेज टाइम। उदाहरण के लिए, आप जब जब यहाँ स्टडी आवर्स के लिए बैठे या खाली बैठे, दैट इज योर टाइम। यही तो दुख होता है कि आप गॉसिप मत करिए, उसमें से एक एक मिनट चुराइए। लिस्ट होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट उसने दिया कि टू डू लिस्ट सेट करो, अपना चैलेंज, मुझे कल ये करना है। अपने खुद को चैलेंज करना है कि इतना तो खत्म करना ही है, तब जाके होगा ना।
जब आप रनिंग को निकलते हैं, आपने अगर गोल सेट किया आज मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं रुकूंगा नहीं, नहीं रुकता है आदमी जो सीरियस है। आज मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे रुकना नहीं है, चाहे जितना पैर दर्द करे, नहीं रुकता है। वैसे ही ये मेथडोलॉजी, अ क्रिप बुक और अ शॉर्ट बुक, यू कैन मेंटेन एंड सेट टास्क एंड गोल्स फॉर योर सेल्फ, दैट विल वर्क। टाइम अपने आप निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सबके अनुभव वही है, मेरा खुद का भी अनुभव वही है। मैंने तो लड़ाई के मैदान में पढ़ाई की है, जेब में पर्चियाँ होती थी, आज ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना है। सब होता है, करने वाले चाहिए। तो ईशांत, यू गिव वैल्यूएबल टिप्स। आई यस 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 यस। एक पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि एक्सक्यूज़ देना नहीं है। जितना एक्सक्यूज़ दोगे उतना आप नीचे दसते जाओगे। एक्सक्यूज़ दिया तो खेल खत्म है। अभी जैसे सर ने बताया कि डेली शेड्यूल का, मैं रिटर्न के वक्त का मेरा शेड्यूल बताता हूँ। मैं 5:30-6 बजे उठता था फॉर रिटर्न के वक्त, 5:30-6 बजे उठता था, फार्मूला रिवाइज करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, रेडी होता था क्लास के लिए जाता था सुबह 8 बजे। 8 बजे से 5-6 बजे तक वहाँ पे, 5-6 बजे से आने के बाद कराटे क्लास में, मतलब कराटे टीच करता हूँ कभी कभार, और क्लास पे भी अटेंड करता हूँ। वहाँ पे जाता था, वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। घर पे आके घर के काम, खाना वगैरह खा के मुझे 10 बज जाते थे। इतना दिन भर का शेड्यूल होके मैं थक जाता था, मेरे टास्क होते नहीं थे। लेकिन तभी बात आती है कि करना है कि नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज सो लेता हूँ, कल करूँगा, नहीं होगा। रोज़ करना है, रोज़ वही करना है, एक ही चीज़ करनी है, रोज़ करनी है, एक ही टाइम टेबल फॉलो करना है, रोज़ करना है। ज़रूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई करना है, लेकिन टाइम टेबल फॉलो करना है। अब टाइम मेरे पास भी नहीं था। जब रिटर्न के पहले जो 1-1.5 महीना रहता था, मेरी 3 या 4 घंटे ही नींद होती थी सिर्फ। इतना पढ़ना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, इतना मतलब आपके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। लेकिन जिसने गिव अप किया या फिर जिसने सोचा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या फिर डिमोटिवेट हो रहा है, दोस्तों के साथ रहो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, फिर से पढ़ाई को लग जाओ। लेकिन गिव अप करना नहीं है। जिसने गिव अप कर दिया उसका खेल खत्म। और टाइम मिलेगा नहीं आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। सर ने जैसे बोला था, बैटल ग्राउंड पे भी वो पढ़ाई करते थे, टू डू लिस्ट वगैरह रहती थी, चेक करना पड़ता था पूरा। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। बनाओ एक, आज से अभी से ही बनाओ। जैसा ही आपका लेक्चर्स खत्म होंगे, जैसे आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, एक लिस्ट बनाओ, आज के लिए भी बनाओ और आज रात को सोने से पहले कल के लिए भी बनाओ, और वो फॉलो करो, उतना करो। और वो उससे क्या होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। और कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव योर सक्सेस, आई वुड से। जस्ट दिस ओनली, don't give up, don't feel demotivated, and there will be times when you will feel that I cannot do it, or it is very hard, will I able to crack it. Just sleep that time. वो वक्त पे दिमाग शांत रखना है, सो जाना है, नहीं तो फिर दोस्तों के साथ रहना है, थोड़ा बहुत गप्पे मार रहा है फ्री टाइम में, बस। लेकिन ज़्यादा भी नहीं। ऐसा नहीं कि यार मुझे लग रहा है कि आज मुझसे नहीं हो रहा, या फिर एग्जाम बहुत हार्ड है मुझसे हो रहा नहीं, दोस्तों के पास गया 2-3 घंटे गप्पे मारे, नहीं, आधा घंटा पौन घंटा, बस खत्म। फिर से ट्रैक पे आना है, फिर से पढ़ाई को लगना है। और व्हाई डिड यू स्टार्ट, व्हाई डिड यू वांट टू डू इट। अगर समझो अपने माता पिता के लिए कर रहे हो, उनका फोटो रखो, जहाँ पे स्टडी टेबल होगा, आपका वॉलेट होगा, आपकी बुक होगी, उसके ऊपर चिपका दो। और जब भी पढ़ाई करोगे तब उनके वो फोटो देखना है, और वॉट एवर रीजन यू आर डूइंग एनडीए, सी एट दैट फोटो एंड स्टार्ट, यू विल डू इट, सिंपल एज दैट। थैंक यू सर। Good. I think valuable tips we have heard today, and I'm sure now he is going for his SSB. He will clear. We all wish him all the best and good luck, and he should clear it, get recommended, and also medical fitness that also gets succeeded, and he gets into the olive green. What is his dream since childhood? Getting into olive green, OG uniform. फौज में आर्मी का जो यूनिफॉर्म है उसको ओजी बोलते हैं, ऑलिव ग्रीन।
ओके, पहले ग्रीन होता था, वो टर्मिनोलॉजी एक वो है कि ओजी, ठीक है. सो वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस. नाउ आई विल रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सर, he must have watched him in a dual role as a mentor also and as a relative also, so definitely he will add few valuable things. I will request principal sir to add few more points. जय हिंद ऑल ऑफ यू. ईशान ने एनडीए पास किया, हमको ऐसा लगा ही नहीं था कि वो पास हो जाएगा, क्योंकि मैडम का बहन का लड़का है, हमारे साड़ू का लड़का है. जब उसका रिजल्ट आया हमें तो एकदम वी आर सरप्राइजिंग दैट ईशान हैज पास आउट द एनडीए एग्जाम. व्हेन आई विजिट चाटे सर्स क्लास, चाटे सर को एक बार छोड़ने गया था सर, मैं अपने यहाँ से छोड़ने गया था, तो क्लास में मुझे ईशान मिला था. तो मैंने उनसे पूछा चाटे सर को कि हमारा ईशान भी आपके पास है. तो उन्होंने तुरंत उनको इसको बुलाया और वहाँ मैंने बताया, बेटा तेरे को करके बताना है, यू हैव टू डू इट. एंड ही हैज सक्सेस, ही मेड. यानी घरची परिस्थिती पण आई हाऊसवाईफ आहे आणि वडील त्याचे टीचर आहेत गुजराती विद्या मंदिरला. आणि जेवढंही ते केलं त्याच्या स्वतःच्या बळावर त्यांनी केलेलं आहे. घरून कुठलंही मोटिवेशन त्याला नव्हतं सर. म्हणजे घरीच त्याला म्हणजे तू आर्मीत जाऊ नको, तू JEEचे क्लास लाव, इंजिनिअरिंगचे क्लास लाव. कारण मोठा भाऊ त्याचा इंजिनिअरिंग आहे, तो पुण्याला आहे. आणि घरून कसल्याही प्रकारचा सपोर्ट न देता त्यांनी त्याचं लक्ष स्वतः डिसाईड केलं की आय हॅव टू जॉईन द इंडियन नेव्ही, आर्मी अँड एअरफोर्स. सो दॅट्स वाय ही गेटिंग हिज सक्सेस इन द वेरी सेकंड अटेम्प्ट, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट उसने ऐसा ही दिया था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट ने उसने करके बताया. और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे स्कूल से भी अगर कोई जाता है तो मैं उसको 11,111 का इनाम जरूर दूंगा. तो हमारे मैडम ने उसको 11,000 का इनाम दिया. मतलब भाई हम तो थक गए हमारे बच्चों को बोलते बोलते, लेकिन कोई पास ही नहीं हो रहा है. अगर आपसे कोई पास होता है तो आप आज फिर से मैं बोलूँगा कि मेरे तरफ से 11,111 का बख्शीश मैं आपको जरूर दूंगा. और क्लेम करने वाला है उसमें जो हाईएस्ट मेरिट, हाँ उसमें जो हाईएस्ट मेरिट वाला रहेगा उसमें से जो हाईएस्ट मेरिट वाला रहेगा उसको जरूर बांटना पड़ेगा. यस. या तो डिवाइड करेगा. और हमें तो बहुत सरप्राइजिंग लगा कि ईशान हैज पास आउट दैट एनडीए एग्जाम. हमें तो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं था क्योंकि दिन भर सर हमारे सामने ही रहता था, घर के काम भी उसके तरफ रहते थे. वो काम में से टाइम निकालना उसने करके बताया. और उसने ही वो खुद पुणे गया, सर्च करके कहाँ SSB के सेंटर से उसने ही सर्च किया. इलाहाबाद भी वो अकेला ही जा रहा है और अकेला ही वो सब कुछ करने वाला है. घर से बोल दिया कि तेरे को जो करना है वो कर. तो वो उसने करके बताया है. और इलाहाबाद को 13 तारीख को जाने वाला है. मेरे ख्याल से अकेला ही हो जा रहा है, अकेला ही, घर का कोई नहीं उसके साथ में, वो अकेला ही जा रहा है. पुणे में भी SSB के लिए अकेला ही गया, फादर नहीं मदर नहीं कोई नहीं गया साथ में, वो अकेला ही गया. और अकेले ही डिसाइड किया उसने कि मेरे को एनडीए पास होना है. तो एनडीए उसने पास आउट करके बताया. एक्चुअली माय सन सानिध्य, ही हैज़ ऑल्सो पास दैट SPI एग्ज़ाम एंड क्लियर इंटरव्यू ऑल्सो. लेकिन सर ने मुझे बताया उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसका काउंसलिंग करता हूँ. लेकिन उसने बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोर्स किया नहीं. वो डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है तेरे मन से हो, लेकिन
मैंने उसको फोर्स किया नहीं। चलो नहीं हमारा लड़का हुआ तो दूसरा लड़का तो भी हमारे घर में से एनडीए पास हुआ है, तो इसकी खुशी मेरे को बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। आई थिंक सर ने जो बताया वो फैमिली एंगल से कि जब जुनून होता है, जुनून है तो सब संभव है। वो अकेला सोच रहा है मुझे करना है तो करना है, तो आपने भी यही सीख ले लिया है, यस मुझे करना है। और आपके तो मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स की भी विश है, तो कर सकते हैं। तो लेट्स गेट मोटिवेटेड, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जीत तय है। और इस बिलीफ सिस्टम के साथ हर दिन लड़ना है अपने शेड्यूल के साथ। ओके, मैनेज योर टाइम वेल। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं क्या? इंटरेक्ट कर सकते हो 10 मिनट। इंटरेक्ट करो 10 मिनट। हम इसको